I'm also reminded today of American journalist Daniel Pearl, who was kidnapped and beheaded by Pakistani terrorists. His last words, "My father is a Jewish, my mother is a Jewish, I am a Jewish." Honorable members of the Tom Lantos Commission, I speak before you the last words of Daniel Pearl in my own words. My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. जनवरी 1990 धरती के स्वर्ग कश्मीर घाटी में सूरज रोज की तरह डूब रहा था। परिंदे आशियानों को लौट रहे थे। शिकारे डल झील का चक्कर काटकर अपने ठिकानों का रुख कर रहे थे। ये शाम भी आम सी ही थी, लेकिन बर्फीली हवाओं की सरसराहट में सरगोशियां थी। गहराती रात के साथ आशंकाएं सच साबित होने लगी। धार्मिक उन्माद से सने पाकिस्तान परस्त सरफिरों ने अमन पसंद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया। मस्जिदों से मर जाओ, मिल जाओ या फिर भाग जाओ का ऐलान होने लगा। 3 थिंग्स जो उन्होंने चॉइसेस वहाँ पर वो बोलते थे, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ टू देयर रिलीजन मुस्लिम, या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाए, या तो उनके साथ इफ यू विल नॉट मिक्स विद देम देन दे विल किल यू। आतंकियों ने ऐलान कर दिया था कश्मीर आबाद होगा कश्मीरी पंडित लड़कियों के साथ, लेकिन पंडित मर्दों के बगैर। I'm glad these hearings are happening today, because when my family and I lost our homes, our livelihood, and our way of life, the world remained silent. Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990, when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? Where were the saviors of humanity when my feeble old grandfather stood with 2 kitchen knives and an old rusted axe, ready to kill my mother and I in order to save us from the much worse fate that awaited us if we landed in the hands of terrorists on the same fateful night? मॉस्क में वहाँ पे नारे लगते थे कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, अपनी औरतों को यहीं छोड़ दो, वो हमें चाहिए, उनको हम पाकिस्तान ले जाएं, मतलब उनको हम हमारे साथ मिलाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे विद कश्मीरी हिंदू वुमेन एंड विदाउट कश्मीरी पंडित मैन। वो क़यामत की रात थी, जिसे जैसे बन पड़ा जान बचा कर भागा। कश्मीरियत के लिए खून बहा देने की कसम खाने वाले अपनों के खून के प्यासे हो गए। As I begin to speak, I'm choked by the thoughts of those voices I represent here, because their voices were extinguished in the most brutal fashion. I am a member of the minority Hindu community from Kashmir, victim of the worst ethnic cleansing witnessed in independent India. I speak here today because I am a survivor. An innocent young woman, a lab assistant in a school, wasn't as lucky as I was. She was abducted, blindfolded, gang raped, and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists, again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood-soaked rice. His name was B.K. Ganju. His crime, his faith. I speak for him today. I could go on and on. We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. अपना घर छोड़ना क्या होता है ये कोई नहीं जान सकता, वही जानेगा जिसने देखा।
पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला अब आई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। और इसलिए आप कोई बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। 11 of the 24 people killed in the Pulwama district of South Kashmir late last night were women and 2 were children. Unidentified terrorists in combat dress directed the unsuspecting victims to assemble for an identification parade, then shot them dead in cold blood. जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं बिल्कुल जो ये नाडीमरा गांव है इसके बिल्कुल पास में ये जो नेक्स्ट विलेज है, काठपुरा नाम है उसका, मैं वहीं का बाशिंदा हूँ। जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ। वो बीइंग ए ह्यूमन या आप इंसानियत के हिसाब से अगर आप देखेंगे या आपने, वो बहुत ही बुरा था हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। मैं एज ए मुस्लिम बोल रहा हूँ, वो बहुत ही बुरी चीज़ थी। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और उनकी बहन और बेटियों को अगवा कर उनका रेप और हत्या की जा रही थी। गांव वालों को इकट्ठा करके अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी, जिससे एक ही समुदाय के 24 लोग मारे गए। वारदात के बाद आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। हमने क्या किया था? इनका कुछ नहीं किया था। अगर ये आज़ादी ढूंढते हैं तो ऐसे आज़ादी कहाँ मिलेगी? कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सर्वे के मुताबिक साल 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 75% कश्मीरी पंडितों ने शुरुआती साल 1990 में ही अपनी जान गंवाई थी। बस इसी वजह से 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच आंकी जाती है। किन हालात में यहाँ से गए इसके लिए पूरी कौम जिम्मेदार है, खाली मिलिटेंट जिम्मेदार नहीं है। पूरी कौम, पूरी जो कश्मीर की मुसलमान कौम है ये जिम्मेदार है। क्योंकि जब कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहे थे तो उन लोगों को बाहर आके ये कहना रोकना चाहिए था कश्मीरी पंडितों को, भाई आप मत जाओ। सब लोगों की एक ड्यूटी है, वो ये है कि ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि सोशल चेंज लाने के लिए, पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, नेशनल चेंज लाने के लिए, उसके लिए एक जनरल मासेस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मैंने जब किताब लिखी थी उसमें ये मैंने लिखा था कि दे हैव क्रिएटेड ए लैंड विदाउट जस्टिस, ए लैंड फुल ऑफ क्रूडिटीज़ एंड क्रूरल्टीज़, एंड this has been done intentionally, not that
they were not known. Not that we didn't have the advocates who knew what it is. Not that we didn't have the parliamentarians who didn't know what the implications of all this were. I have myself recommended many times that this is an anomaly which you must remove. And in 87, the matter was taken to the even Supreme Court. In the Supreme Court, they recognized that this is a totally unjust thing. The West Punjab refugees have a very good case, and the state government should take some action. But despite all the exhortations which were made, the state government wouldn't move. The central government, who was full of very knowledgeable people, I suppose, they didn't move. Why? This nation lacks courage. Abrogation of Article 370, that has raised so much concern around the world, is in fact a restoration of human rights. After abrogation of Article 370, people of Jammu and Ladakh have been liberated from the tyranny of being half citizens in their own country. देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। मज़ा इसमें आया उनके स्पष्ट शब्दों में। जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा, आप कश्मीरी पंडितों ने काफ़ी कष्ट सहा। वो जैसे अमृत था हमारे लिए। 370 हटाना एक ऐसा, उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम गर्व से उनका नाम मोदी जी दिन रात तब से कर रहे हैं। 5 अगस्त को जब ये हुआ, तब से हमें ये लगा कि हमको अपना स्वाभिमान वापस आ गया और हमें ये लगा कि हम वापस जा सकते हैं कश्मीर। वो ऐसी डरावनी चीज़ें थी कि रात के टाइम पे आपको ऐसी आवाज़ें दी जाती थी, भागो या मरो। उस रात हमें याद है कि जनवरी में कैसे हमको भागना पड़ा। रातों में ट्रकों के अंदर हमको निकाला, हम निकले। ये तो हमारी पता नहीं 500 साल से ज़ख्म लग रहे थे। फाइनली किसी ने हमारे ज़ख्म भरने की कोशिश करी, तो हम उसके लिए साभारी अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी फॉरएवर विल बी ग्रेटफुल कि इन्होंने जो हमारे साथ किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, बिकॉज कि ऐसा होगा कि आर्टिकल 370 हटेगा। सो राइट, अभी वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट मोदी जी हैज़ द करेज एंड गट्स टू डू दिस। जब कश्मीर से भागी हूँ, उस काली रात में 9th ग्रेड में थी, तो हम माइनॉरिटी थे, इसी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे लिए कि ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी भारतीय तो समझते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बनाए हिंदुस्तान का, राइट। बट हमारे लिए अब हम समझ सकते हैं कि हमने जो सफ़र किया एज अ माइनॉरिटी कश्मीर में, हमारे पेरेंट्स ने जो सफ़र किया उस टाइम वो 40s की एज में थे, जो लाइफ वो एंजॉय करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो वो एज अ अभी उनके बच्चे, हमें दुख होता है वो कि उन्होंने वो लाइफ अपनी एंजॉय नहीं की। उनको अपने बच्चों की एजुकेशन उस फ्लो के साथ जाना पड़ा, क्योंकि कश्मीरियों के लिए, पंडित्स के लिए पहली बात होती है एजुकेशन। उसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग ट्रक के पीछे निकले हैं, भाग के 2 कपड़ों में निकले हैं, जो कि पहन के थे वैसे निकले हैं ट्रक में, और एकदम दुबक के कि आवाज़ ना निकले कहीं, क्योंकि सारे में टेररिस्ट थे। वहाँ पली बड़ी हूँ, पूरा टाइम कॉलेज बंद हो जाते थे। इंडिया पाकिस्तान मैच अगर इंडिया जीतता था, कॉलेज हमारा 15 दिन के लिए बंद हो जाता था। इंडियन डॉग्स करके चलाते थे। ये हमने पूरी लाइफ सहा है। तो शुक्रगुजार है मोदी जी के कि उन्होंने ये 370 आर्टिकल हटा के हम लोगों को वो इज्जत दे दी कि हम लोग को अपने ही, किसी ने नहीं दी थी, हम लोग अपने ही देश में माइग्रेंट कहलाने लगे। एक तो हम भाग के निकले, ऊपर से माइग्रेंट का ठप्पा लग गया था। तो ये जो आज हमें मिला है, इससे हमें इज्जत वापस मिली। मज कशीर सैन
टर्न कशीर मर्ज कशीर। क्या मतलब हुआ इसका? हमारी कश्मीर हमारी माँ है और ये हमारी सदा माँ रहेगी। I am a proud daughter of Kashmir. I am a proud legatee of India's composite civilization. Terrorism has uprooted me and snatched my home from me. I hope my human rights are restored too someday, and the human rights of my community. Thank you. Thank you very much. बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो क्या शुक सुत नालानो हो 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 बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो क्या शुक सुत नालानो हो